video we will be discussing the trachea and mainly we will discuss the cervical part of the trachea. The thoracic part of trachea we will discuss in another video. Let's start. So trachea is also called the windpipe. Trachea को हम windpipe भी बोलते हैं. It is around 55 to 60 centimeter in length in the case of cattle, and the length of the trachea is different in different animal species. The trachea is partially cartilaginous and partially membranous, क्योंकि इसमें क्या होता है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं. तो दिस पार्ट जहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग है दैट विल बी द कार्टिलेजिनस पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज मेम्ब्रेनस पार्ट. क्लियर? इट एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंग्स टू द बेस ऑफ द हार्ट. लेट्स सी इट थ्रू द पिक्चर. जो ट्रैकिया होता है विद दिस ट्रैकिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैरिंग्स. सो दिस पार्ट इज अवर लैरिंग्स. लैरिंग से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर बेस ऑफ द हार्ट होता है 3rd to 6th रिब पर. 3rd 4 5 6 3rd to 6th रिब तक अब हमको क्या देखने मिलता है? बेस ऑफ द हार्ट लाइक दिस. ठीक है, तो जो हमारा ट्रैकिया है एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लैरिंग्स अप टू द बेस ऑफ द हार्ट. क्लियर है? नेक्स्ट, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट. जहाँ पर बेस ऑफ द हार्ट हमने देखा था वहाँ पर ट्रैकिया डिवाइड हो रहा था इनटू द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई. क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ 45 to 50. तो जो हमारा ट्रैकिया होता है in the case of animal it is about 45 to 50 incomplete cartilaginous rings वहाँ पर present होती हैं, and these cartilaginous rings again different in different species. The number varies. The dorsal aspect of the ring is completed by the membrana transversa. तो इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं. Here it is. So as we can see, this is the ventral part of the trachea and this one is the dorsal part of the trachea. The ventral part of the trachea is made up of the C-shaped incomplete cartilaginous ring. Here as you can see here. And the dorsal part you can see it is membranous. ठीक है, जो आगे से म्यूकोसा और यहाँ पे कुछ मसल्स हैं, ट्रैकियल मसल्स हैं, और ये membranous part होता है which is at the dorsal aspect of the trachea. ठीक है. Next point, and this dorsal surface is completed by the membrane, and this membrane is known as membrana transversa. This you have to remember, this can be an OT. So membrana transversa is present at the dorsal aspect of the C-shaped incomplete cartilaginous ring in the trachea. Clear? Next point, in between the each tracheal ring there is a transverse groove which is the interannular space. जैसे कि एक tracheal ring ऊपर है, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, और एक नीचे है, तो इसके बीच में जो स्पेस है, क्योंकि रिंग है तो रिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं हम एन्युलर. सो दिस विल बी योर interannular space. Clear? Let's see it through the picture. Interannular space. Here you can see. So this one is one ring, this one is another ring. इन दोनों के बीच में ये जो space दिख रहा है light blue, ये this space which is light blue in color, that is your annular ligament वहाँ पे present हो गया है, और अभी हम इस space को बोल रहे हैं interannular space. Clear? Let's move to the next point. So we have discussed the interannular space. Now next we have this. From the first tracheal cartilage, it is attached to the cricoid cartilage by the cricotracheal ligament. तो होते क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ट्रैकिया होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द लैरिंग्स, और लैरिंग्स का कौन सा पार्ट अटैच होता है टू द ट्रैकिया? दैट इज योर क्रिकॉइड कार्टिलेज. सी, so here as you can see, this is the cricoid cartilage which is a part of the larynx, and this is your first tracheal ring. तो जो फर्स्ट ट्रैकियल रिंग है वो कनेक्ट कर रही है विद द क्रिकॉइड कार्टिलेज, और यहाँ पर जो लिगामेंट पाया जाता है दैट लिगामेंट इज कॉल्ड द क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट. क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट एज द नेम सजेस्टिंग, जो कि क्रिकॉइड और ट्रैकियल कार्टिलेज को कनेक्ट कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज हियर. तो फ्रॉम द सेकेंड ट्रैकियल कार्टिलेज बैकवर्ड दे आर कनेक्टेड बाय द ट्रैकियल एन्युलर लिगामेंट. अभी जैसे मैंने बताया ये फर्स्ट ट्रैकियल रिंग है, दिस इज सेकेंड ट्रैकियल रिंग. इसके बीच के स्पेस को हम बोल रहे हैं इंटरएन्युलर स्पेस, और इस इंटरएन्युलर स्पेस में एक लिगामेंट प्रेजेंट है, दैट लिगामेंट इज ट्रैकियल एन्युलर लिगामेंट. क्लियर? ट्रैकियल
एनुलर लिगामेंट, ट्रैकियल मीन्स ट्रैकिया में, एनुलर मतलब रिंग टाइप का है ये लिगामेंट, ठीक है। नाउ द कोर्सेज ऑफ द ट्रैकिया, नाउ ट्रैकिया हैव द टू पार्ट्स, द सर्वाइकल पार्ट एंड द थोरेसिक पार्ट, एंड वी विल बी डिस्कसिंग द सर्वाइकल पार्ट इन दिस वीडियो बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। द सर्वाइकल पार्ट, द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ट्रैकिया बिगिंस फ्रॉम द लैरिंग्स, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द लैरिंग्स इटसेल्फ, एंड इट पासेस डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड हम बोल रहे हैं एनिमल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ द नेक। तो इसको ना एनिमल के रिस्पेक्ट में इमेजिन करोगे तो अच्छे से समझ पाएगा। देखो हियर इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी, सो द ट्रैकिया, पहले मैं इसको एक ट्रैकियल पार्ट तुमको दिखाती हूँ। सी the cervical part, sorry, this is the cervical trachea which starts from the larynx to the tracheal inlet तक जाता है ये, ठीक है, thoracic inlet, sorry, from larynx to the thoracic inlet, और फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है that is your thoracic, that is हाँ thoracic part। तो हम अभी सर्वाइकल पार्ट देख रहे हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द लैरिंग्स, और ये कहाँ तक जाता है, थोरेसिक इनलेट तक जाता है, उसको भी हम समझते हैं कैसे। अब इधर देखो, जैसा अभी हमने पढ़ा सर्वाइकल पार्ट ट्रैकिया का जो होता है वो लैरिंग से बिगिन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना। नाउ ट्रैकिया पासेस डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब देखो नीचे मूव कर रहा है ना, डाउनवर्ड चल रहा है, एंड बैकवर्ड अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ द नेक, ये पूरा नेक रीजन है, ठीक है। देखो दिस इज योर होल पार्ट इज द नेक रीजन, ठीक है। अब इस नेक रीजन का ये होगा डोर्सल पार्ट, ये होगा वेंट्रल पार्ट, ठीक है। अब इस वेंट्रल पार्ट के पीछे की तरफ से निकल रहा है ना ट्रैकिया, तो बस यही बोल रहे हैं वो, the cervical part of the trachea begins from the larynx, it passes downward, नीचे की तरफ जाएगा, and backward, पीछे की तरफ जाएगा, backward किसके, along the ventral surface of the neck, neck की ventral surface के पीछे से पास करता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर लॉन्गस कोलाई मसल पाई जाती है इधर, ठीक है, लॉन्गस कोलाई मसल यहाँ पाई जाती है, अब ये डायग्राम में देखेंगे तो जो लॉन्गस कोलाई मसल्स है वो भी यहीं पर प्रेजेंट होगी, तो उससे भी पास होता हुआ जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, इट विल रीच अप टू द थोरेसिक इनलेट, सो दिस इज द पार्ट ऑफ थोरेसिक इनलेट, यहाँ से शुरू होता है थोरेसिक इनलेट यहाँ तक। तो थोरेसिक इनलेट जो होता है उसका प्रॉपर डेफिनेशन है कि थोरेसिक इनलेट डॉर्सली होता है फ्रॉम द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री, यहाँ पर फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री होगी, वहाँ से थोरेसिक इनलेट स्टार्ट होगा। लेटरली यहाँ पे फर्स्ट रिब से स्टार्ट होता है, और वेंट्रली यहाँ पे जो फर्स्ट ये है ना स्टर्नम, देखो ये स्टर्नम है ना, यहाँ पे ये स्टर्नम है, ठीक है, ये स्टर्नम है ये ना, तो स्टर्नम का जो फर्स्ट स्टर्निवरी होगा वहाँ से थोरेसिक इनलेट स्टार्ट होता है। इसको हम एक पिक्चर में भी देख लेते हैं। Here, so this red portion is thoracic inlet, ऊपर thoracic vertebra है डॉर्सली, ventrally first sternibry है, और laterally first rib है, वहाँ से thoracic inlet स्टार्ट होता है। तो ये समझ में आ गया सर्वाइकल पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है। The cervical part of the trachea begins from the larynx, larynx से begin होता है, and passes downward and backward किसके, along the ventral surface of the neck and below the longus colli muscle के नीचे होता है, and it reaches up to the thoracic inlet, और कहाँ तक पहुँचता है, ये thoracic inlet तक पहुँचता है। आई होप सर्वाइकल पार्ट का जो भी एक्सटेंशन है वो समझ में आ गया होगा, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है सर्वाइकल पार्ट, ठीक है। चलो अब हम इसमें देखते हैं ट्रैकिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये उसमें एक्सप्लेनेशन आएगा इसका। द सर्वाइकल पार्ट इज एंटायरली मीडियल इन द पोजीशन एंड इट इज प्रेजेंट वेंट्रल। तो वेंट्रल समझ में आ रहा है, ये एनिमल के रिस्पेक्ट में हम वेंट्रल बोल रहे हैं, ये एनिमल है, एनिमल का ये डोर्सल पार्ट होगा, ये वेंट्रल पार्ट होगा। तो जो हमारा ट्रैकिया है वो कहाँ पर पाया जा रहा है, वेंट्रल रिस्पेक्ट पर पाया जा रहा है, और ये मीडियली प्रेजेंट होता है, ठीक है, मीडियली। द सर्वाइकल पार्ट इज एंटायरली मीडियल एंड वेंट्रल इन पोजीशन। अब जो सर्वाइकल पार्ट का रिलेशन है वो होता है सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें। द रिलेशन ऑफ सर्वाइकल ट्रैकिया इज द सर्वाइकल कॉर्ड, एक्चुअली इट्स सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। अरे सिंपल है ना, सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है ट्रैकिया, ठीक है, ये सर्वाइकल रीजन है, पूरा गर्दन वाले पार्ट को सर्वाइकल रीजन कहते हैं। तो यहाँ से सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, तो इसलिए हम इसको इस वाले पार्ट को बोलते हैं सर्वाइकल कॉर्ड। तो जो सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रैकिया है दैट इज रिलेटेड विद द सर्वाइकल कॉर्ड। क्लियर हो गया पॉइंट सर्वाइकल कॉर्ड वाला। नेक्स्ट द रिलेशन ऑफ सर्वाइकल कॉर्ड हो गया। नेक्स्ट इज
Dorsally, there is esophagus up to the level of third cervical vertebrae. From C3, esophagus is placed left lateral to the trachea. इसको समझते हैं. बोल रहा है कि जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो डोर्सल वाला पार्ट है, ट्रैकिया ये इसका डोर्सल पार्ट होगा. डोर्सल पार्ट में क्या देखने को मिल रहा है? डोर्सल पार्ट में ईसोफेगस प्रेजेंट होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखो, ठीक है. ये हमारा ट्रैकिया जा रहा है, ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है. ईसोफेगस कहाँ पर प्रेजेंट है? डोर्सली. तो डोर्सली ईसोफेगस इज प्रेजेंट, बट ये ईसोफेगस टोटल नीचे तक नहीं जाता है. ये सिर्फ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्री तक ईसोफेगस पीछे होता है. लेकिन थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्री के बाद ईसोफेगस लेफ्ट लेटरल हो जाता है. देखो डायग्राम में देखते हैं, इन दिस डायग्राम ये दिख रहा है, ये ईसोफेगस है. अभी ये कौन सी पोजीशन पर आ गया है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन पर आ गया है. लेफ्ट लेटरल कब आया? आफ्टर द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्री. मतलब यहाँ तक ये C3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ होगा. तो C3 तक तो बैकवर्ड रहता है, डोर्सली रहता है, बट आफ्टर द C3 द ईसोफेगस टेक्स द लेफ्ट लेटरल पोजीशन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. क्लियर हो गया? एक और पिक्चर में देख लेते हैं इसको. हियर ईसोफेगस देखो आ गया ना इधर लेफ्ट लेटरल. ये देखो ईसोफेगस, ये दिख रहा है यहाँ पर लेटरल लेफ्ट साइड पर. क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब. After the C3 longest colli muscle present up to the thoracic inlet. देखो C3 तक तो पीछे की तरफ हमारा ईसोफेगस प्रेजेंट था, लेकिन C3 के बाद ईसोफेगस के बदले पर कौन आ जाता है? वहाँ पर लॉन्गेस्ट कोलाई मसल वहाँ आ जाती है. ठीक है, देखो इसी में डायग्राम में समझ लेते हैं. ये देखो, तो यहाँ C3 तक तो ठीक है, पीछे की तरफ ट्रैकिया प्रेजेंट होगा इसके जस्ट पीछे. लेकिन अब ये लेफ्ट लेटरल में आ गया ईसोफेगस, तो पीछे की तरफ कौन सी मसल प्रेजेंट होगी? लॉन्गेस्ट कोलाई मसल. ठीक है, लॉन्गेस्ट कोलाई मसल देखो ऐसे है. दिस इज द लॉन्गेस्ट कोलाई मसल विच इज प्रेजेंट डोर्सल टू द ट्रैकिया. ट्रैकिया के पीछे की तरफ या फिर एनिमल की पीठ की तरफ पाई जाती है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अब हम रीड करते हैं. अब हम देखेंगे जो हमारा ट्रैकिया है उसके राइट में क्या क्या देखने मिलेगा, राइट में, और लेफ्ट में क्या क्या देखने मिलेगा. तो ये थोड़ा याद करना होगा. राइट साइड में आपको देखने मिलेगी राइट लोब, थायराइड ग्लैंड, कैरोटिड आर्टरी, वेगस सिम्पैथेटिक ट्रंक, जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, सर्वाइकल, लिम्फ नोड, ट्रैकियल डक्ट या फिर लिम्फेटिक डक्ट. इसको डायग्राम से समझते हैं फटाफट से. हियर तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है? राइट में राइट इंटरनल जुगुलर वेन देखने मिल रहा है. ठीक है, ये क्या है? हमारा थायराइड ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड का राइट लोब है ये. ठीक है, राइट साइड में दिख रही है. और थायराइड वेन हो गया. ठीक है, और इसमें देखते हैं. इसमें देखो क्या क्या देखने मिल रहा है. थायराइड ग्लैंड की राइट लोब, दिस इज द राइट लोब थायराइड ग्लैंड. ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी दिख रही है यहाँ पर. ठीक है, और क्या देखने मिल रहा है? ये राइट साइड में हो गया. ठीक है, वेगो सिम्पैथेटिक ट्रंक भी हम दिखाते हैं दिस पिक्चर. इसमें सब कुछ है. इंटरनल जुगुलर वेन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है, ये हो गया राइट में. और वेगो सिम्पैथेटिक ट्रंक देखो, ये रहा वेगो सिम्पैथेटिक ट्रंक. और यहाँ पर आपको दिख रही है लैरिंजियल नर्व भी यहाँ पर देखने मिल रही है. ठीक है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. तो दीज आर द पार्ट्स विच आर, और यहाँ पर लिम्फ डक्ट भी देखने मिल जाएगी. ठीक है, दीज आर द पार्ट्स विच आर प्रेजेंट एट द राइट लेटरल साइड ऑफ द ट्रैकिया. सिमिलरली अगर हम लेफ्ट लेटरल साइड पे देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखो लैरिंजियल नर्व देखने मिल रही है. ठीक है, मेन याद रखना है कि ईसोफेगस वहाँ प्रेजेंट होता है, बाकी इसका अपोजिट कर देंगे. इंटरनल जुगुलर वेन देखने मिलेगी, कैरोटिड आर्टरी देखने को मिलेगी. ठीक है, थायराइड वेन, थायराइड आर्टरीज, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. और वेंट्रली आपको देखने मिलेगा स्टर्नोथायरोहायोडियस मसल. ये याद करना है, स्टर्नोथायरोहायोडियस मसल, इट इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड ऑफ द ट्रैकिया. ठीक है, ये आपको स्टर्नम में भी पढ़ने को मिलेगा. स्टर्नोथायरोहायोडियस मसल जो स्टर्नम है, स्टर्नम का ये जो क्रेनियल एंड है, तो स्टर्नम के जो क्रेनियल एंड पर मसल अटैच होती है, दैट इज द स्टर्नोथायरोहायोडियस मसल एंड स्टर्नोसेफेलिकस मसल. तो वहाँ से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं. और ये डायग्राम्स आप देख सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट द thoracic part of the trachea. In the next video we will be discussing the
This was the cervical part of the trachea. In the next video, we will discuss the thoracic part of the trachea. Thank you.